Hello guys, welcome back. Today we are with another video. In this video we are going to discuss about Terzaghis bearing capacity theory. So if you are new in my channel, do subscribe and press the bell icon as well. Guys, let us start the video without any further delay. So first of all, we will discuss about the assumptions made by Terzaghi, right? So the first assumption is this theory is only for shallow foundation. तो ये खाली shallow foundation में applicable है, deep foundation के लिए applicable नहीं है. Second assumption is soil is homogeneous and isotropic, राइट. होमोजीनियस क्या हुआ, आइसोट्रॉपिक क्या हुआ. जब मैंने आपको टर्ज़ाघीज़ का वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी पढ़ाया था, उसके एजम्पशंस में अच्छे से समझाया था कि होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ. तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से देख लेना, ठीक है. थर्ड एजम्पशन क्या है, द बेस ऑफ फुटिंग इज रफ. ये मेरी फुटिंग है, इस फुटिंग का जो बेस है ना वो रफ होना चाहिए, ठीक है. और फोर्थ ऑप्शन क्या है, वाटर टेबल लाई बिलो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. तो वाटर टेबल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बिलो लाई करना चाहिए. तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ इस पिक्चर में. तो ये मेरा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फुटिंग हो गई. तो फुटिंग का जब लोड पड़ेगा तो सॉइल कुछ इस तरह बिहेव करेगी, ठीक है. इसके नीचे जो सॉइल है ना, एक फेलियर कंडीशन में कुछ इस तरह बिहेव करेगी. ये मेरा जोन हुआ, जोन 1, जोन 2 हो गए ये दोनों, और ये जोन 3 हो गए. तो इस जोन को हम बोलते हैं, जोन 1 को बोलते हैं इलास्टिक जोन. तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे हमारी वाटर टेबल लाई करनी, कहीं ना कहीं यहाँ नीचे लाई करेगी, ठीक है. तो इलास्टिक जोन बोलते हैं जोन 1 को, जोन 2 और जोन 3 को हम प्लास्टिक जोन बोलते हैं, ठीक है. इतना याद रखना, फिलहाल ऐसा कुछ होता है, आगे हम समझाएंगे फ्यूचर के वीडियोस में. तो फिफ्थ assumption is soil above the base of footing can be replaced by equivalent surcharge gamma d and offer no resistance. इसका मतलब हुआ, this is my footing, right, and this is the base of footing, right. यहाँ तक base of footing हुआ, till here it is base of footing. So the soil above base of footing, from here to here, this is the soil above the base of footing. So this soil is replaced by gamma d, right, during our when we do calculation for bearing capacity. So we replace this soil by gamma d, and this soil offers no shear resistance, right. So this was all about the assumptions of Terzaghi bearing capacity theory. Now we will move ahead and discuss the theory. So according to Terzaghi ने क्या बोला, Terzaghi जो था उसने हमें, Terzaghi gave this theory to find out the bearing capacity of the soil, right. Terzaghi theory is used to find bearing capacity यहाँ पे आप लिखना ultimate bearing capacity, right, to find ultimate bearing capacity of soil. So Terzaghi theory is used to find ultimate bearing capacity of soil. So what is ultimate bearing capacity? I already discussed these capacities: ultimate bearing capacity, net bearing capacity, safe bearing capacity in previous video. So I will provide the link of video as well below the description. So आप वहाँ से देख लेना. So ultimate bearing capacity is a maximum theoretical bearing capacity or maximum theoretical pressure taken by soil without failure. So actually for design of foundation we need safe bearing capacity, QS. So QS is found by Q ultimate bearing capacity divided by factor of safety, right, factor of safety. So that's why we use this ultimate bearing capacity to find safe bearing capacity. So safe bearing capacity is used during design of footing, right. तो ये बात आप याद रखना. अब बात करेंगे हम आगे, ये QU हुआ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, क्यू से हुआ सेफ बियरिंग कैपेसिटी. अब बात करेंगे हम आगे कि टर्ज़गी ने क्या बोला. नाउ अकॉर्डिंग टू टर्ज़गी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को मैं लिखता हूँ QU. अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QU इज इक्वलेंट टू CNC प्लस हाफ ऑफ गामा
BF N gamma plus gamma DF NQ, right? This is the ultimate bearing capacity equation for footing. So this equation is for strip footing, right? Strip footing only. Now I will tell you here what are these NC, N gamma, NQ first. So each and every term will be defined here. So QU is a ultimate bearing capacity. Ultimate bearing capacity of soil. Here C equivalent to cohesion, right? And gamma is unit weight of soil. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? BF is breadth of footing or width of footing, width of foundation or footing, right? And DF equivalent to depth of footing or foundation, right? अब बात आ रही है यहाँ पे NC, NQ, N gamma. These all are called bearing capacity factors. ठीक है, इतना याद रखा आपने तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इक्वेशन स्ट्रिप फुटिंग के केस में आपने ये जहन में रखना है. ठीक है, इसमें गेट में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं. ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम. तो क्यू यू हुआ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर स्ट्रिप फुटिंग, हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोहेजन पता होगा, सॉइल टेस्ट करके पता कर लेंगे जो भी टेस्ट वाले बंदे हैं. यूनिट वेट भी पता चलेगा, ब्रेथ ऑफ और डेप्थ आप खुद देख लेंगे टेप से, या आप जब डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कितनी फुटिंग की डायमेंशन से. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, अब बात करेंगे आगे बात करेंगे हम क्या, NC, N gamma और N phi की. So what is NC here? NC is a bearing capacity factor, but NC is equivalent to NQ minus 1 into cot theta. ठीक है, cot phi कहो या theta कहो, ये phi कहो. ठीक है, तो NC is equivalent to this, or we can say NC equivalent to NQ minus 1 divided by tan phi. ठीक है, अब बात करते हैं N गामा की. सो N गामा बराबर होता है 1.8 tan phi इंटू NQ माइनस 1. अब NQ की बारी आई. NQ इक्वलेंट टू N phi e रेस पावर tan phi. ठीक है, अब यहाँ पे N phi की बात करेंगे. N phi इज इक्वलेंट टू, आपको पढ़ाया था मैंने, फ्लो वैल्यू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2. ये होता है, इसको बोलते हैं फ्लो वैल्यू, राइट? तो ये क्या है, NC, N गामा और NQ के वैल्यूज हो गए. ठीक है, तो आप जब इनमें ये वैल्यूज, जब आपको ये फाइंड आउट करना होगा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, तो N गामा पता चल गया यहाँ से, NC पता चल गया यहाँ से, N गामा भी यहाँ से पता चलेगा. तो अब आपको यहाँ पे फाई दिया होगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन जब दिया होगा तो आप सारे उसका वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाल सकते हैं. ठीक है, अब NQ आप यहाँ से निकाल सकते हैं. पहले जब NQ आप निकालेंगे तो NQ का वैल्यू यहाँ पे आपको यूज होगा. अब बात करेंगे, ये हुआ था, ये हमारे पास किसके लिए था, ये हमारे पास स्ट्रिप फुटिंग के लिए था और कोहेजन नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए था. ठीक है, कोहेजनलेस सॉइल. अब कोहेसिव सॉइल की बात आती है तो फॉर कोहेसिव सॉइल हम क्या करते हैं, कोहेसिव सॉइल में फाई क्या होता है, 0 फॉर कोहेसिव सॉइल. ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, क्ले की बात करें. सो फॉर क्ले फाई इक्वलेंट टू 0. सो व्हाट विल हैपन, सो N गामा वी नो, N गामा क्या होता है, 1.8 tan phi. तो phi का वैल्यू जब 0 होगा, tan 0 होता है 0, तो ये सारा वैल्यू का 0 होगा.
एन गामा 0 हो गया। एन क्यू की बात करेंगे, एन क्यू 10 0 हो गया 0, ई रेस पर 0 1 होता है, ठीक है, ई रेस पर 1 0 होता है। तो 0 इंटू 1 इंटू एन फाइव, एन फाइव हमें अभी क्या है, एन फाइव यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे 0 रखते हैं, 1045 क्या हुआ 1, तो एन फाइव का वैल्यू यहाँ से 1 आया, समझ आया। ई रेस पावर 10 0 0, ई रेस पावर 0 1। अब एन फाइव का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, कहाँ पे 5 का वैल्यू 0 रखेंगे, 1045 क्या होता है 1 होता है। अब बात आ रही है एन सी की, एन सी का वैल्यू याद रखना 5.7 होता है, ठीक है, फॉर प्योर क्ले। तो प्योर क्ले के लिए एन फाइव का वैल्यू 0 होता है। अब क्या करेंगे, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ये इक्वेशन क्या होगी, ये जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। एन गामा कहाँ पे, एन गामा ये सारा का सारा क्या हुआ 0 हो गया, ख़त्म, ठीक है। अब बात यहाँ पे एन क्यू की, एन क्यू 1 हो गया, और यहाँ पे 5.7 सी इंटू गामा डी एफ, ठीक है, 5.7 सी प्लस गामा एफ क्यू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर कोहेसिव साइड, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्यू अल्टीमेट जो होती है वो 5.7 सी प्लस गामा डी एफ फॉर कोहेसिव सॉइल एंड इन केस ऑफ स्ट्रिप फोटिंग, ठीक है। जब स्ट्रिप फोटिंग में कोहेसिव सॉइल होगा तब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू ये होगी। अब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो नेट क्या होता है, नेट होता है क्यू एन यू, वो होता है क्यू यू माइनस गामा डी एफ होता है, ठीक है, आपने पढ़ा था कल। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्यू एन यू, क्यू यू क्या है, ये पूरा का पूरा क्यू यू है, तो 5.7 सी प्लस गामा डी एफ माइनस क्या है, क्यू यू माइनस गामा डी एफ, तो ये दोनों खत्म हुए। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है कोहेसिव सॉइल के लिए, क्यू एन यू इक्वल टू 5.7 सी। यही गेट में क्वेश्चन आया हुआ था, दिस इज ए गेट क्वेश्चन, किस साल में आया था वो यार नहीं, लेकिन गेट में पूछा गया था नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर कोहेसिव सॉइल इज इक्वल टू, फिर वहाँ पे दिया हुआ था, तो 5.7 सी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एन सी का वैल्यू है ना, ये एन सी का वैल्यू मैंने आपको बताया 5.7। अब ये अकॉर्डिंग टू टर्जेगी ने बोला। अब मियरहॉफ ने बोला एन सी का वैल्यू होता है 5.14। ये किसने बोला, मियरहॉफ एक साइंसदान था, फाउंडेशन जियोटेक इंजीनियर था, तो उसने बताया था ये। तो ये अकॉर्डिंग टू टर्जेगी ये है, ठीक है। तो टर्जेगी के अकॉर्डिंग जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर कोहेसिव सॉइल होता है वो 5.7 सी होता है, कोहेजन ऑफ सॉइल। तो ये गेट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, आप समझ के चलना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रिप फुटिंग की, हमने बात की, तब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम रेक्टेंगुलर फुटिंग की बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो अल्टीमेट बियरिंग के यहाँ पे जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, एक तो कोहेजन सॉइल की कोहेजन में सी पे डिपेंड करेगा और डेप्थ ऑफ फुटिंग पे डिपेंड करेगा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ था कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो ये डेप्थ ऑफ फुटिंग पे। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, डेप्थ ऑफ फुटिंग और ब्रेथ पे डिपेंड नहीं करता है। नेट अल्टीमेट एन यू, क्यू यू अलग हुआ, क्यू एन यू अलग हुआ, ठीक है, तो वो मैंने बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो अब बात करेंगे ultimate bearing capacity in case of rectangular footing. How we find ultimate bearing capacity in case of rectangular footing? So QU for rectangular footing is equivalent to 1 plus 0.3 breadth of footing divided by length into CNC plus gamma DF NQ plus half of gamma BF breadth of footing एन गामा इंटू 1 माइनस 0.2 बी अपॉन एल, ठीक है। ये किसकी बात की मैंने आपको, ये बात की फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग। दिस इक्वेशन इज फॉर रेक्टेंगुलर,
ठीक है, रेक्टेंगुलर फुटिंग की बात की, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर फुटिंग की। तो स्क्वायर फुटिंग के लिए क्या होगा, क्यों अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। देखो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी टर्जगी ने क्यों बोला, क्योंकि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी से हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं, और सेफ बियरिंग कैपेसिटी हम डिजाइन में यूज करते हैं भाई, ठीक है। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, किधर गया वो पेज, तो यहाँ पे बताया था। और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू क्या होता है, 2.5 से लेके 3 तक हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू यू फॉर स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए बताया, स्ट्रिप फुटिंग के लिए भी बताया। अब स्क्वायर फुटिंग की बात आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्यू यू इक्वल टू 1.3 CNC प्लस 0.4 गामा BF N गामा प्लस गामा DF NQ, ठीक है। ये किसके लिए है, दिस इक्वेशन इज फॉर स्क्वायर फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग। अब हम बात करेंगे सर्कुलर फुटिंग की, ठीक है। क्यों अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर सर्कुलर फुटिंग इज आल्सो 1.3 CNC प्लस 0.3 गामा BF N गामा प्लस गामा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इंटू NQ, ठीक है। ये है सर्कुलर फुटिंग के लिए, फॉर सर्कुलर फुटिंग, ठीक है गाइस। तो ये याद रखना। अब यहाँ पे गेट पे क्वेश्चन क्या बना था, गेट पे क्वेश्चन ये बना था कि रेशियो ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर स्क्वायर फुटिंग टू द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर सर्कुलर फुटिंग, इसका रेशियो बताना था। तो इसको रेशियो क्या होता है, देखो यहाँ ये सारा सेम है, बट यहाँ पे 0.4 है और यहाँ पे 0.3 है। तो क्या इसका रेशियो बनेगा, रेशियो ये बनेगा क्यों अल्टीमेट, यहाँ पे एस लिखता हूँ स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू अल्टीमेट सी हो गया सर्कुलर फुटिंग। तो ये क्या बनेगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.3 बनेगा 0.3, तो ये क्या बनेगा 4/3। यही गेट का क्वेश्चन आया हुआ था, ये गेट में आया हुआ था। तो 2 गेट के क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ में बता के चला हूँ, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, आई होप कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात हम क्या करेंगे, हाँ मेयरहॉफ का मैंने आपको बताया कि मेयरहॉफ ने क्या बोला था। मेयरहॉफ भी एक ज़बरदस्त साइंटिस्ट था जिसने अच्छी खासी बाजी मारी तो जियोटेक में। तो मैं आपको स्ट्रिप फुटिंग के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि स्ट्रिप फुटिंग, मैंने आपको बताया कि स्ट्रिप फुटिंग के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। देखो तो स्ट्रिप फुटिंग क्या होता है, स्ट्रिप फुटिंग और फाउंडेशन, these are also known as wall footing to support wall if length is greater than breadth। स्ट्रिप फुटिंग देखो ये इस तरह की होती है स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है। तो ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, वॉल को सपोर्ट करने के लिए भी स्ट्रिप फुटिंग को यूज करते हैं। स्ट्रिप फुटिंग कैसे होता है, देखो स्ट्रिप, आप स्ट्रिप नाम से समझ लेना, स्ट्रिप ऐसा होता है, ये फुटिंग इस तरह का फुटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे कॉलम्स को लगा लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये इन चारों कॉलम का लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेगा नीचे सॉइल में, ठीक है। तो ये स्ट्रिप फुटिंग का काम हो गया। तो अब यहाँ पे वॉल भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखो जब इन कॉलम्स का जो एरिया है अगर ओवरलैप कर गया, ये कॉलम्स का साइज एक दूसरे से ओवरलैप कर गया, या हम कॉलम के ऊपर डालते हैं ना छोटा सा फुटिंग, ये मेरा स्क्वायर फुटिंग हुआ, तो ऊपर कॉलम, तो ये जो अगर ओवरलैप कर गया इनका फुटिंग, तो हम फिर एक किस्म का फुटिंग डालते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रिप फुटिंग। तो यही स्ट्रिप फुटिंग हो गया, या राफ्ट फाउंडेशन आपने जाना होगा, ये राफ्ट फाउंडेशन होता है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स के लोड को सपोर्ट करता है ये राफ्ट फुटिंग, ठीक है। तो स्ट्रिप फुटिंग इस स्ट्रिप के शेप में होता है, तो कंटिन्यूस एक वॉल को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा टर्जगी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी। तो फाइनली क्या हो गया, हमने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाला, तो हमें जब डिज़ाइन करेंगे सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्यों अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये क्यों अल्टीमेट कौन सी फुटिंग है उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे क्यों अल्टीमेट का वैल्यू लगाना है। हमारी स्ट्रिप फुटिंग है, रेक्टेंगुलर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग है, सर्कुलर फुटिंग है, तो अकॉर्डिंग टू डेट यहाँ से मैंने बताया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लगा लेती हूँ, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट लेके फिर से आपके लिए आएंगे। टिल देन यू टेक केयर।